اگلے دن چھٹی کے بعد عطرت اپنی گاڑی لے کر شاپنگ سینٹر آ گئی۔ پہلے نجم احمد کے لیے سوٹ کا کپڑا، ان کی بیوی کے لیے سوٹ اور جیولری، اور پھر جنرل شاپ پر آ گئی۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد آخر کار جڑاؤ والے نازک سے جھمکے اور ان کے ساتھ کندن جڑاؤ رنگ خرید لی۔ شاپر سنبھالے تو شاپنگ سینٹر سے باہر آئی اور پارکنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، ہر چیز رک گئی۔ پھر سریراہ اچانک یوں ہی چلتے چلتے بعد مدت اسے دیکھا تو مجھے رونا آیا۔ سامنے سے آتے ہوئے اس شخص کو وہ ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں میں پہچان سکتی تھی، جو آنکھوں کی پتلیوں میں آج بھی عکس بن کر محفوظ تھا، بصارتوں میں محفوظ تھا۔ اپنی منفرد شخصیت کے ساتھ گرے پینٹ اور بلیک شرٹ میں عین سامنے وہ دشمن جان کھڑا تھا۔ 10 سال کے طویل عرصے میں اس کی آنکھوں پر فلیٹ فریم والے چشمے نے اس کی شخصیت کو مزید گریسفل بنا دیا تھا۔ عطرت آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ یہی حالت عارش کی بھی تھی۔ وہ حیرت اور غیر یقینی انداز میں ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وقت نے عطرت کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ آج بھی اتنی ہی پرکشش اور جاذب نظر تھی جیسا کہ 10 سال پہلے نظر آتی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو عطرت؟ عارش بےتابی سے آگے بڑھا اور اس سے مخاطب ہوا۔ عطرت نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بہت اچھی، خوش اور مطمئن ہوں، لہجے کو مضبوط بنا کر سرد مہری سے کہا۔ خالہ جان، خالو سب کیسے ہیں؟ عارش، تم ایسے سوال کرنے کا حق کھو چکے ہو۔ تم سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں، سارے رشتے ناطے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تمہیں کسی کے بارے میں جاننے کا یا سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ویسے بھی ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اچھا ہی ہوا، ورنہ میں نے تو تمہیں دیکھ کر برداشت کر لیا۔ پاپا ہوتے تو وہ شاید تمہیں زندہ ہی نہ چھوڑتے۔ اور تمہیں کیا، تم تو خوش ہو نا اپنی زندگی میں، تمہیں دوسروں سے کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی عطرت کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ خوش اور میں؟ وہ زندگی میری خوشی کی نہیں تھی، بلکہ مجبوری تھی۔ عارش کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ پلیز عطرت، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس کا چہرہ ملتجی تھا۔ نہیں، اس نے بالکل انکار ہی کیا۔ پلیز عطرت، ایسے نہ کہو، ایک بار میری بات تو سن لو۔ مسٹر عارش احمد خان، یہاں پر نہ آپ تماشا بنے اور نہ مجھے بنائیں۔ میں کوئی عام چھچوری سی عورت نہیں ہوں جو آپ کی باتوں میں آ کر آپ کو وقت دوں۔ یہاں میری عزت ہے، مقام ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی مجبوریوں اور دلیلوں کے ساتھ میرے راستے سے ہٹ جائیں، اور یہ بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ اب میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی آپ کا کوئی مقام ہے۔ آپ کا وجود میرے لیے بے معنی اور غیر ضروری ہے۔ آپ کا اور میرا اب کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تعلق ہے۔ تیز اور تلخ لہجے میں کہتے ہوئے نفرت بھری نگاہ ڈالے عطرت تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عارش حسرت بھری نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ گاڑی میں بیٹھی تو نہ جانے کیسے 2 آنسو پھسل کر گالوں پر آ گئے۔ اتنے عرصے بعد اس دشمن جان کو دیکھا تھا جو آج بھی روم روم میں بسا ہوا تھا۔ دل و دماغ پر اس کا ہی قبضہ تھا۔ اس کا دل بری طرح بھر آیا تھا۔ عجیب سی بے چینی اطراف میں پھیل گئی تھی۔ بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے گھر پہنچی، فیروزہ کی گود میں سر رکھ کر بری طرح سسک اٹھی۔ ہائے ہائے، کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہے نا میری بچی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فیروزہ یوں اچانک افات پر بری طرح گھبرا گئی۔ جلدی سے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ اماں، آج وہ عارش ملا تھا۔ پانی کا گھونٹ لے کر گلاس سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ رک رک کر بولی۔ کہاں؟ تم نے اسے سنایا نہیں؟ ذلیل نہیں کیا تم نے اسے؟ عارش کا نام سن کر فیروزہ بھی غصے سے بولی۔ کیا ذلیل اسے؟ بہت سنایا میں نے، بہت شرمندہ ہو رہا تھا، اپنی مجبوریاں بتا رہا تھا۔ مجھ سے ایک بار مل کر بات سننے کو کہا کہ وہ سب میں نے مجبوری میں کیا، مگر میں نے بھی منہ توڑ جواب دے دیا، صاف کہہ دیا کہ تمہارے لیے میرے دل میں اب کوئی جگہ نہیں۔
तुम से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वास्ता है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अल्फाज शायद उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिरोजा ठंडी सांस भरकर रह गई। अच्छी भली जिंदगी में आरिश ने आकर दोबारा से हलचल मचा दी। वो तो साइम की शादी की तकरीबात शुरू हो गई तो इतरत कुछ बहल गई। दावत वलीमा में पहनने के लिए नाइला ने उसे सूट लेकर दिया था। उसने लाख मना किया मगर नाइला ने ये कहकर खामोश करवा दिया कि नजम और सारिम की कोई बहन नहीं, अगर होती तो भाइयों के घर से इसे जोड़ा भेजा जाता। नजम तुमको अपनी बहन कहते ही नहीं बल्कि दिल से समझते भी हैं, इसलिए ये सूट मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया है, तुमने यही पहनना है। इतरत की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आप लोग तो मुझे मोहब्बतों का मफरूज बना रहे हैं, कैसे उतारूंगी मैं आप लोगों की मोहब्बतों का कर्ज। चुप करो लड़की, बस खुश रहा करो, हमें यही अच्छा लगेगा। नाइला के लहजे में हर दर्जा प्यार था। इतरत मुस्कुरा दी। लाइट पर्पल और सी ग्रीन कॉम्बिनेशन वाले जदीद तर्ज के स्टाइलिश सूट में नाजुक सी ज्वेलरी में हल्के मेकअप के साथ लंबे बालों की सादा सी चुटिया डालकर उसने आईने में अपना जायजा लिया। न जाने कितने अरसे बाद आज इस तरह तैयार हुई थी, बहुत हसीन लग रही थी। परफ्यूम स्प्रे कर रही थी कि फिरोजा आ गई। अल्लाह पाक मेरी बिटिया को नजर बद से बचाए, माशाल्लाह आज तो बहुत हसीन लग रही है मेरी गुड़िया, फिरोजा अम्मा ने कहा और सर पर दुपट्टा डालकर नजर बद की दुआ पढ़कर उस पर दम कर दिया। अपना ख्याल रखना, और हाँ, वापसी कैसे होगी? नजम भाई को छोड़ जाएंगे अम्मा, और मैं जाऊंगी भी तो उनके साथ ही, अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा रही। इतरत ने पर्स उठाते हुए मोबाइल चेक किया। ओह, नजम भाई की मिस कॉल आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, फिरोजा ने मुस्कुराते हुए कहा और इतरत बाहर की तरफ चल पड़ी। वो हॉल पहुंची तो हर जानिब रंगो नूर का सैलाब था। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे, फोटो सेशन हो रहा था। नजम एक्सक्यूजेस करके आगे बढ़ गए। ओके आप जाएं, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। वो मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। सामने की टेबल पर एक फैमिली बैठी थी। 3-4 साल का बच्चा था, खूबसूरत और शरीफ बच्चा जो मजे मजे की बातें करके अपनी मामा और बाबा को हंसा रहा था। इसकी मासूम और बेसाख्ता बातों पर इतरत को भी हंसी आ रही थी। वो भी गौर से बच्चे को ही देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मानूस सी आवाज पर वो चौंक कर पलटी। वही दुश्मन जान सामने खड़ा था, जो तमाम तर बुराइयों के बावजूद डार्क ग्रे सूट में हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी समेत दिल में उतरा जा रहा था। वालेकुम सलाम, वही सर्द मेहरी से जवाब दिया। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उफ, यहाँ पर कोई तमाशा भी नहीं कर सकती थी। थैंक्स कहकर वो बैठ गया। इतरत, आज एक बार फिर हम मिल गए। अल्लाह पाक हमें बार बार मिला रहा है, शायद वो भी चाहता है कि एक बार तुम मेरी बात सुन लो। आरिश, मुझे कोई बात नहीं सुननी, जो हो गया सो हो गया। तुमने जो करना था तुम कर चुके, अपनी मर्जी से जिंदगी मुंतखब कर चुके हो। जब मैंने तुम्हें अपने दिलो दिमाग और जिंदगी से निकाल दिया तो क्यों बार बार मुझे डिस्टर्ब करने आ जाते हो? तुम जाओ ना अपनी जिंदगी में, अपनी बीवी और बच्चों में। जहाँ तुम खुश थे वहीं जाओ और खुश रहो। मैं अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन हूँ। इतरत, ना मेरी अब कोई बीवी है और ना ही बच्चे हैं। मैं कल भी तन्हा था और आज भी तन्हा हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है। मैं वाकई नाकाबिले माफी हूँ, तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारे सामने आऊँ, मगर सिर्फ एक बार तुम्हारे सामने सच्चाई लाना चाहता हूँ, तमाम हकीकत तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। इतरत, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। मुझे इतना बेबस और मजबूर कर दिया गया था कि मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं रहा। मैंने ना चाहते हुए भी वो जहर हलक में उतार दिया। मैं पल पल मरता रहा, मैं दिवालिया हो गया। मैंने बताया था ना कि मैंने एक और काम भी स्टार्ट किया है। मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या काम है। मैं कम वक्त में बस ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, बस इसलिए वहाँ पर मौजूद एक पाकिस्तानी फैमिली के डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने लगा और वो स्टोर बाप और बेटी मिलकर चलाते थे। मैं भी वहाँ पर काम करने लगा। लड़की का नाम शहरवार था। मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो कब मुझे पसंद करने लगी। वो हद दर्जा बोल्ड और आजाद ख्याल और घमंडी लड़की थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर देगी। एक रोज काम के दौरान उसने मुझसे इजहार मोहब्बत कर डाला। तब मैंने उसे साफ कह दिया कि मेरी शादी तय हो चुकी है और पाकिस्तान जाकर मैं शादी करूंगा।
वक्ती तौर पर तो वो खामोश हो गई। मैं समझा कि बात आई गई हो गई। मैं निहायत ईमानदारी और मोहब्बत से काम कर रहा था। दिन रात काम करता, ऑफिस से आकर कुछ देर आराम करता और फिर स्टोर पर पहुंच जाता। स्टोर के मालिक अनवर साहब को शायद इस बात का इल्म था या नहीं, मुझे नहीं पता। बस मुझे तो काम से गर्ज था। एक रोज मैं हस्बे मामूल जब स्टोर पर आया तो पता चला कि स्टोर में मौजूद कई हजार डॉलर चोरी हो गए हैं। अनवर साहब और शहवार हर जगह ढूंढ रहे थे। मैं भी परेशान हो गया। अचानक शहवार मेरे करीब आई और मुझसे आहिस्तगी से पूछा, सुनो आरिश, तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत थी, कहीं तुमने तो। शहवार मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप लोगों को तो पता है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ और मेहनत से ही पैसा कमाना चाहता हूँ। मैंने घबरा कर वजाहत की। ओके, पैनी खेस अंदाज में उसने देखा और आगे बढ़ गई। पापा, जरा मिस्टर आरिश की तलाशी भी ले लें। वो अनवर साहब के करीब जाकर बोली। अरे मैम, आप क्या कह रही हैं? मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है सर, आप देख लें, आप मेरी चेकिंग कर लें। और जब अनवर साहब ने मेरा हैंड बैग चेक किया तो इसमें वो सारे डॉलर्स मौजूद थे। अरे ये कैसे आए? ये तो मैं अभी लेकर आया हूँ, इसमें कैसे हो सकते हैं? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज। ये पता नहीं कैसे हो गया। मेरा बुरा हाल था, जैसे काटो तो लहू ना निकले। और अनवर साहब की आंखों में गुस्सा दर आया। मैंने तुम्हें नौकरी दी, तुम्हारा ख्याल रखा और तुमने ऐसी हरकत की। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पता है यहाँ चोरी करने वालों को क्या सजा दी जाती है? तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा, कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो जाओगे तुम, जेल अलग करवा दूंगा। नहीं नहीं सर, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैं शरीफ खानदान का लड़का हूँ सर। मैं रोने लगा। अब भीगी बिल्ली क्यों बन रहे हो? शहवार किसी चुड़ैल की तरह मेरे सामने मौजूद थी और मैं सब समझते हुए भी उसकी मिन्नत करने लगा। प्लीज शहवार मैम, प्लीज, आप तो जानती हैं ना मुझे। मैं गिड़गिड़ाया, फिर माफी भी मांगी और माफी के लिए जो शर्त रखी गई वो मेरे लिए इंतहाई तकलीफदेह थी। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें माफी मिल सकती है और ये बात यहीं पर खत्म कर दी जाएगी। ये नामुमकिन है। मेरी बात पर शहवार आग बगोला हो गई। ओके ठीक है, फिर अपने अंजाम के लिए भी तैयार हो जाओ। तुम क्या समझते थे मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? मुझे जो चीज पसंद आ जाए हर सूरत में वो हासिल कर लेती हूँ और तुम भी अब मेरी जिद बन गए हो। मुझे हर सूरत में तुम्हें अपना बनाना है। मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत नहीं है कि तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मगर मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिसे मैंने हासिल करना चाहा वो किसी और का हो जाए। अब तुम्हारी मर्जी, लंबी जेल और बदनामी चाहिए या मुझसे शादी करोगे? अच्छी तरह सोच लो। बकौल तुम्हारी एक बहन है, एक माँ भी, जिसकी बीमारी और अच्छी जिंदगी के लिए पैसा कमाना है। मुझसे शादी करने से तुम्हारा घर से राब्ता भी रहेगा और पैसे भी भिजवा सकोगे। वरना, खबासत से मुस्कुराते हुए वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली। मैंने दोनों हाथों से अपना चकराता सर थाम लिया। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मेरी निगाहों में तुम्हारा मासूम सा चेहरा भर आया। मासूम और पाकीज़ा फूलों जैसी लड़की जो दिलो जान से मुझसे चाहती थी, शिद्दतों से प्यार करती थी, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जो हजारों मील दूर बैठी मेरी मुंतजिर थी, एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजार रही थी। भला मैं कैसे इसकी मासूमियत से खेल सकता हूँ? कैसे उसे छोड़कर यहाँ इस तेज तरार, आवारा और बदमिजाज लड़की से शादी कर सकता हूँ? कैसे इतरत के बिना जी पाऊंगा? ये कैसा मकाम है? मैं कैसे मकाम पर आ खड़ा हूँ? अचानक से अंधेरा छा गया। दुख और अजियत थी। एक तरफ वो जालिम लड़की और उसका खबीस बाप खड़ा था। कितनी जलालत की थी उन्होंने। मेरा दिमाग फटने लगा। अगर अम्मा को पता चल गया कि मैं जेल में हूँ तो उफ, या अल्लाह, मैं क्या करूँ? आज जिंदगी के इस मकाम पर वो खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कहीं से भी एक हल्की सी रोशनी की झलक भी नहीं थी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊंगा, मगर वो जादूगर मेरे आस पास थे और फिर मैं बेबसी से सर झुका गया, गोया खुद अपने हाथों से अपने अरमानों को आग लगा दी। शहवार खुदसर और सरफिरी लड़की थी। उसने तो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए शादी की थी और मुझे मजबूर और बेबस पाकर उसे खुशी होती। वो तो इधर उधर मंडलाने वाली लड़की थी। बहुत जल्द ही मुझसे दिल भर गया था उसका, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरिश एक लम्हे के लिए रुका। इतरत खामोशी से सुन रही थी। आरिश दोबारा गोया हुआ।
मैं फिर अमेरिका से निकलकर दुबई शिफ्ट हो गया। बहुत कोशिश की थी कि तुम लोगों से राब्ता करूं, मगर राब्ता मुमकिन ना हुआ। कई साल बाद पाकिस्तान आया, रुबाब की शादी हो गई, अम्मा का इंतकाल हो गया। कई बार दिल चाहा कि तुम्हारे घर आऊं, मगर अम्मा ने बताया कि एहतशाम अंकल ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। एक बार तुम्हारे घर तक आया, मगर हिम्मत ना हुई कि किस मुंह से सामना करूंगा। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसे हमें मिला दिया। मैं तन्हा रह गया इतरत। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी और तुम ही रहोगी। वो शहवार नामी फितना 1 साल के लिए मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके वापस चला गया। सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे माफ नहीं करोगी क्या इतरत? वो सरापाए सवाल था। उसकी आंखों में सच्चाई थी, बेबसी और महरूमी थी। इतरत की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आरिश, जो तुम्हारे साथ हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, मैंने गुज़श्ता 10 साल जिस अजियत में गुजारे तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। मगर अब अपनी जिंदगी की आदी हो चुकी हूँ मैं। जब मैं मामा और बाबा के बगैर जी सकती हूँ तो समझो मैं हर किस्म की हालात से गुजर सकती। इसलिए अब तुम भी वापस लौट जाओ, शायद तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। इतरत प्लीज, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? आरिश के लहजे में दुख बोल रहा था। नहीं, इतरत ने सख्ती से कहा। आरिश के चेहरे पर दुख के साए लहरा रहे थे, आंखों में बेतहाशा उदासी उतर आई। ओके इतरत, खुश रहो। उठते उठते आरिश ने एक पर्ची उसके सामने रख दी। इतरत बामुश्किल अपने आंसू रोक पाई। आरिश जा चुका था। उसे लगा जैसे सब कुछ एकदम से ही खत्म हो गया। न जाने कैसी सोच थी कि आरिश को बेकसूर जानते हुए भी वो ऐसा रवैया अख्तियार कर गई। न चाहते हुए भी इतरत ने वो पर्ची उठाकर पर्स में रख ली। 2 दिन इतरत ने बेहद कर्ब में गुजारे। न जाने कैसी बेकरारी थी। आज भी वो टेरेस पर उसी बेचैनी से टहल रही थी। फिरोजा उसकी कैफियत देख रही थी। वो समझ रही थी कि इज़्ज़त किस ज़हनी खलफशार का शिकार है। फिरोजा चाय बनाकर लाई, तब भी उसे उलझन का शिकार देखा। दिल मचल रहा था। आरिश के हक में दुहाइयां दे रहा था। बिटिया, क्या मैं इतनी गैर अहम हूँ कि तुम मुझसे अपनी उलझन भी बयान न कर सको? नहीं अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ही तो हैं मेरे लिए, और है ही कौन मेरा? क्या बताऊं कि मैं कितनी परेशान हूँ। इतरत ने ठंडी सांस लेकर फिरोजा के हाथ थाम लिए। आरिश को लेकर परेशान होना, वो फिर मिला था क्या? फिरोजा की बात पर इतरत ने आहिस्तगी से असबाब में सर हिला दिया। बताओ मुझे क्या कह रहा था वो? तब इतरत ने सारी बात उसको सुना दी। सारी बात सुनकर फिरोजा ने सर हिलाया। एक बात कहूँ बिटिया? जी अम्मा कहें, इतरत ने कहा। अगर हमसे मशवरा लोगी तो हम यही कहेंगे कि तुम्हें आरिश को माफ कर देना चाहिए। इस तमाम किस्से में हमें कहीं भी इनका कसूर नजर नहीं आया। वो बेचारे तो खुद ही बुरे हालात का शिकार हो गए थे। कौन सा उन्होंने जानबूझकर अपनी खुशी से सब कुछ किया? ये तो सोचो कि अजियत में तो उन्होंने भी जिंदगी गुजारी, और आज तक उनका तन्हा रहना इस बात की दलील है कि उनके दिल में आज भी सिर्फ तुम हो। एक बार फिर खुशियों ने तुम्हारे दर पर दस्तक दी। इस बार दरवाजा ना खोलना अच्छी बात नहीं। और इतरत गुड़िया, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा दिल आज भी आरिश के नाम पर धड़कता है। जैसे वो तन्हा है, तुम भी तन्हा हो, क्योंकि तुम भी अपनी जिंदगी में आरिश के अलावा किसी को नहीं ला सकते। मेरा बूढ़ा साथ कब तक रहेगा? तुम्हें किसी मजबूत सहारे की जरूरत है, और आरिश से बेहतर सहारा और कोई नहीं। बेहतर यही है कि उसको माफ करके उसका हाथ थाम लो। अल्लाह पाक तुम्हारे सारे दुखों का अजाला करे, तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान के रास्ते हमवार करें। आमीन। फिरोजा की आंखें और उनकी आवाज़ भीगने लगी। इतरत, जो निहायत तवज्जो से फिरोजा की बातें सुन रही थी, जो 2 दिन से ज़हनी खलफशार का शिकार थी, दिल और दिमाग की जंग हाँ और ना के दरमियान चल रही थी, एक लम्हे में ही दिल के सामने हार गई। आज भी दिल के कोने कोने में वही काबिज था। शुक्रिया फिरोजा अम्मा, इतरत उठते हुए बोली। अरे कहाँ जा रही हो बिटिया? क्या मेरी बात बुरी लगी? फिरोजा ने परेशान होकर उसे देखा। अरे नहीं अम्मा, आप तो मेरी अम्मा हैं। मैं वो आरिश को कॉल करने जा रही हूँ कि ईद उल अज़हा वाले दिन आकर आपसे मिल ले, इतरत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिरोजा अम्मा आंखें फाड़े हैरत से उसे देखने लगी। इतरत के हसीन चेहरे पर
مسکراہٹ کے ساتھ ہر درجہ سکون اور اطمینان تھا۔ ایسا سکون اور اطمینان اور کھلتا ہوا چہرہ فیروزہ نے 10 سال بعد دیکھا تھا۔ بھیگی آنکھوں سے وہ عطر کو جاتا دیکھنے لگی۔